ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب أما أوتوا شيء أحب إليهم من النذر إلى ربهم عز وجل رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخلص نياتنا لوجهك الكريم اللهم اخلصنا لما تحبه وترضاه اللهم طهر قلبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء آمين. معزز حاضرین، دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہیں، ہے سب آدم کے اولاد، لیکن ہر ایک کے نصیب الگ الگ، اور ان میں سب سے زیادہ جو خوش نصیب قوم ہے وہ ہے مسلم قوم، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ جو خوش نصیب ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے موحدین. آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، سب جہنم کی آگ میں جلیں گے، ایک ہوگا جو جنت میں جائے. مسلمانوں میں سب سے خوش نصیب ترین جماعت وہ ہے جو موحدین ہے، جو اہل توحید ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ایک آیت بیان فرماتے ہیں. آج وقت بھی شاید ہو چکا ہے کافی، آس پاس دور بھی جانا ہوگا لوگوں کو. تو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ایک آیت بیان فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے نصیب، کچھ بد نصیب ہے، کچھ خوش نصیب ہے، اور الحمدللہ ہم خوش نصیبوں میں ہیں. اور دنیا کے باقی سارے لوگ جو اس کے علاوہ ہے وہ بد نصیب. کس اعتبار سے بد نصیب آگے جو بیان ہوگا اس کا اندازہ رہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں. مین یہاں پر تبعیض کے لیے، ان کے کئی معنی ہیں، یہاں تبعیض کے معنی میں بھی، یعنی بعض کا ترجمہ ہے. یہاں لوگوں میں سے، لوگ یہاں لوگوں سے نہیں ترجمہ ہوگا، یہاں ترجمہ ہوگا لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کفر اور اللہ کی عداوت میں اتنے سخت ہیں. کیا ہے؟ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا رکھا. مختلف قسم کے، کسی کا حضرت عیسیٰ، کسی کی کوئی مورتی ہے، کسی کا چاند ہے، کسی کا سورج ہے، کسی کا کچھ اور ہے. اتنا ہی نہیں اسے معبود بنایا. ہم یہ سمجھتے ہیں بیوقوف ہے، اپنی روزی روٹی کا اس کو کچھ ذریعہ ہے، اپنے آبا و اجداد کو دیکھ رہا ہے اسی لیے کر رہا ہے. نہیں، ایسا نہیں، یہ ہماری غلط سوچ ہے. اللہ کیا فرما؟ اللہ جو قرآن میں فرما اس پہ یقین کی جگہ کریں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. ان کی تعظیم، ان کی محبت ان کے دلوں میں ویسی ہے کحب اللہ، جیسی اللہ کی ہونی چاہیے. اب اللہ کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ وہ ابراہیم کی سیرت اٹھا کے آگ کے علاوہ میں دھوکا دے. ابراہیم علیہ السلام نے کمپرومائز کیا. وہ اللہ کے انبیاء کی سیرت پڑھ لیجیے، وہ صالحین کی سیرت پڑھ لیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ لَيُمْشَطُ بِمَشَاطِ الْحَدِيدِ. تم سے پہلے ایسے موحد تھے، ایسے اللہ رب العالمین کے دیوانے تھے، اللہ رب العالمین سے اتنے زیادہ محبت ہے، ان کو لوہے کی کنگھی سے چھیلا گیا تھوڑا تھوڑا گوشت. ایک ہے نا، ایک ساتھ گولی مار دی گئی، کلہاڑی سے گردن مار دیا جائے، تلوار سے مار دیا جائے، فوراً موت آ جائے گی. اس میں اتنا زیادہ نہیں ہوتا ہے عذاب. عذاب یہ ہے کہ آپ کو تڑپا تڑپا کے مارا جائے.
यहाँ से गोश्त थारा गया, दांत आप तोड़े गए, आंखें निकाली गई, आंख में भी डाला गया, जैसे बर्मी लोगों के साथ जैसे वो खाल भी उतारी गई, बाल भी नोचे गए। नबी फरमाया इससे भी सख्त तरीन का अज़ाब क्या है? फरमाया तुमसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऐसे नेक बंदे थे, क्या थे? लोहे की कंघी से उनको थोड़ा 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 गोश्त छीला गया, और आपको और भी सख्त तरीन अज़ाब की शक्ल अज़ाब छीला जाए, गोश्त छीला जाए, लाश में हड्डी निकल आए तब तक सांस नहीं निकलती, क्योंकि असल जिसकी तरफ रूह रहती है वो अंदर है, वो मौजूद है। फरमाया मा यसरिफु ज़ालिका अन दीन, फिर भी वो अल्लाह के दीन से नहीं पलट। अल्लाह की मोहब्बत ये होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया लोगों में कुछ ऐसे बदनसीब ऐसे जिनके नसीब खराब है, अल्लाह के सिवा दूसरों को उन्होंने अपना माबूद बना लिया, माबूद का दर्जा दे दिया। और ये निंद जो है, अंदाज, ये कुछ भी हो सकता है। माबूद इतनी ज्यादा किसी भी चीज को इतनी ज्यादा तरजीह अल्लाह की मोहब्बत से ऊपर चले गए तो शिर्क में आया, और न सिर्फ शिर्क में आया, हलाकत है, हलाकत, इताअत मुमकिन ही नहीं। इसीलिए फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हदीस के अंदर क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूमिन के दर्जे तक नहीं आ सकते हो, मूमिन की रैंक हासिल नहीं कर सकते हो। हाँ मुसलमान रहोगे, निचले दर्जे के मुसलमान रहोगे, जन्नत में वो दर्जे नहीं मिलेंगे, अल्लाह का वो कुर्ब तुम्हें हासिल नहीं होगा। मोमिन आला दर्जे के मुसलमान ला युमिनु नहीं बनेगा तब तक तुम्हारे में से कोई मोमिन, नामुमकिन सी बात है। कब तक? हत्ता अकुना हब्बा इलैहि, जब तक न मैं उसको महबूब तरीन हो जाऊं। किससे? न्यू वालिदी, अपने वालिद से, वो वलदिही, जो सबसे ज्यादा दुनिया की महबूब तरीन चीज होती है। पहले हमें भी महसूस नहीं होता जब हम औलाद वाले नहीं थे, वाकई में या सबसे ज्यादा बाप की मोहब्बत होती है, माँ बाप की या औलाद। वन्ना से लोगों में कोई ऐसा होता है जिसका ऐसा किरदार होता है जो आंखों में ऐसा समा जाता है, कुछ नजर नहीं आता, उसकी मोहब्बत में इंसान दीवाना हो जाता, तेरे लेने धर्म छोड़ने को भी तैयार, तेरे लेने सब कुछ करने को तैयार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कोई नहीं होना चाहिए सिर्फ में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किब्र की कोई बात नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हकीकत है, ये अल्लाह की तरफ वही थी। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को छुपाते ख्यानत हो जाती। मोमिन नहीं बन सकते थे, ये हकीकत थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह से एक मतलब उमर फारूक से कहा, उमर फारूक ने सच बात ये है, अल्लाह के रसूल तशरीह है, वही अल्फाज नहीं बयान, आप तो मुझे सबसे ज्यादा प्यारे लेकिन जान से नहीं। उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी आप मोमिन नहीं है। फरमाया हाँ अब हो गए, फरमाया अब आप मोमिन। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं? लोगों में कुछ बदनसीब ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह के अलावा दूसरे माबूद बना रहे। वैसे नहीं, तिजारत के लिए नहीं, रस्म रिवाज के तौर पर नहीं, उनके लिए जान गंवाने को तैयार है, उनके मालो असबाब, हुकूमत, सब कुछ लुटाने को तैयार। पर हम देख रहे इस वक्त मुसलमानों को, कई मुसलमानों को, नाम के मुसलमानों को जब इख्तिदार मिला, उनको क्या, उन्होंने क्या किया? या आज भी मुसलमान ममालिक में जो मुसलमानों के पास जो ममालिक है, बादशाहते जहां मुसलमानों को मिली है, अल्लाह का दीन नाफिज है कुछ? अल्लाह के साथ वो मोहब्बत है उनको, अल्लाह के दीन की वो फिक्र है, वो अल्लाह की मोहब्बत उनके ममालिक, उनके उस निजाम में कहीं दिखती है? दिखती है आपको? कहीं नहीं। हर कोई बेवफाई कर रहा है। उसके अलावा गैरों को देख लीजिए, अपने मिशन में क्या है, क्या भी हो जाए, नहीं अपने अपना मिशन करना, पूरी दुनिया नाराज क्यों हो, ये होना चाहिए था मुसलमान का मिशन, पूरी दुनिया भाड़ में नहीं, मुझे एक अल्लाह चाहिए, खत्म। मेरे रिश्तेदार भाड़ में नहीं गए, उनको दाढ़ी पसंद है या नहीं, मुझे क्या करना, मेरा अल्लाह मुझसे। भाड़ में नहीं गए, मुझे आलो औलाद, मुझे इनको हलाल खाने, इसके अलावा कुछ नहीं दूंगा, मुझे नाम निकले या ना निकले। ये हमारा मुसलमानों का मिजाज है मुसलमानों का मिजाज। आपने देखे बड़े बड़े वज़रा इस वक्त बने हुए,
वजीर आला बने हुए, लिबास सीधा साधा। वो देखे आप, देखा है ना आपने, हमेशा बाल मूंड के रखते, जो है उनका वल्लज़ीना अंदाज़ा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह, यत्तखिज़ु अंदाज़ा युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह। ऐसे माबूद उन्होंने बना रखे हैं जिनके लिए अल्लाह की तरह मोहब्बत करे। भाड़ में गए मेरी शोहरत, भाड़ में गया मेरा इमेज, मुझे बोले कोई या न बोले, मुझे मेरा माबूद खुश हो, मुझे मेरा फला देवता खुश हो। ये किसके अंदर होना चाहिए? लेकिन अल्लाह फरमाते आ गया, अल्लाह फरमाते कि हर मुसलमान थोड़ी ना ऐसे, वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले, जो मोमिन दर्जे का मुसलमान है, वो ऐसा नहीं होता। वो इब्राहिम की तरह होता है, वो इब्राहिमी किरदार रखता है, वो उन ईमान वालों का किरदार रखता है, वो सहाबा का किरदार रखता है, जिनके लिए फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर तुम सोने का ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करोगे, एक सहाबी ने अगर एक पाव, एक मुद अल्लाह की राह में आटा खर्च किया, उसके बराबर भी नहीं पहुंचते। क्यों? किसकी चीज की, उसमें वजन क्या है, उसमें जरा आप मुझे बता सकते हैं? हमारे सोने में क्या है और उनके इसमें क्या है? सहाबा किराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत इखलास में प्योर, वो ये देखा नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुल्क छोड़ दो, मुल्क छोड़ दिया, बनाया हुआ घर सब कुछ छोड़ दिया, बीवी छोड़ दी खूबसूरत, आला औलाद छोड़ दिया। कितना मुश्किल है। आप शायद अपने वतन से बाहर नहीं निकले, जब आप अपने वतन से बाहर 1 साल रहे, अपने यहाँ की दरख्तों की भी याद आता, अपने यहाँ का पानी याद आता, अपने यहाँ के चश्मे याद आते, अपने यहाँ की पहाड़ियां याद आती। आपने शायद ज्यादा दूर आप नहीं रहे हो, आप रहा हो कोई, आपने से कोई ड्यूटी करने वाला बताइए। मक्का में रहे, सब कुछ उम्र लगाई सहाबाए किराम ने अल्लाह के साथ में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुक्म आ चुका, ये छोड़ दो, यहाँ आप ईमान बचा नहीं सकते हो। जमीन की फिक्र मत करो, ईमान की फिक्र करो, आखिर उस जन्नत की फिक्र करो जिसका नजर जहां तक दौड़ाओगे वो जन्नत वो तुम्हारी होगी। उस जन्नत की फिक्र करो जिसका मकान इतना बड़ा होगा, एक दरवाजे 70,000 फरिश्ते इस्तेमाल करें। उस जन्नत की फिक्र करो जहां शराब का समंदर होगा, तो तुम्हारी अपने एरिया में होगा, तुम्हारी जमीन में। जहां दूध का समंदर होगा, जहां शहद का समंदर होगा, गाय वगैरह ये सब रखने की जरूरत। जहां बाथरूम ही नहीं होगा, जहां कपड़े चेंज करने की जरूरत ही नहीं होगी, यहां से निकल पड़ो, सब अंधाधुंध आए चले आए। पर एक सहाबी के बारे में, अबू सलमा के बारे में पढ़ा, बीवी को छीन लिया, बच्ची को भी छीन लिया। अल्लाह के साथ मोहब्बत वाले इसे होते। यही वजह है, अभी हमारे मोहतरम फरमा रहे थे, ये हदीस सहाबा की ये है, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लेकिन ईमान वाले ऐसे नहीं होते। ईमान वाले आजकल लील वालों, पोगल वालों, हम जैसे लोगों की तरह नहीं है। मस्जिदें उनकी गैराबाद हो, अल्लाह के दीन को खुद वो हकीर समझे, नबी सम की सुन्नतों को खुद हकीर समझे, कुरान ही को तावीज़ों की किताब समझ ले, कुरान ही को नाजरा की कोई किताब समझ ले। हमारे सबसे घटिया तरीन कसूर है वो किसका है? इस्लाम का। कुरान का कसूर हमारे माशरे में नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, मुसलमानों अगर इज्तिमाई तौर पर उठोगे तो इसी किताब के साथ उठोगे, अगर छोड़ दी तो जलील रहोगे इसी किताब के जरिए। ये हमारे यहाँ क्या तस्वर है? हमारे यहाँ, हमारे समाजों में दुनियावी तालीम वाले को बड़ी इज्जत है, कुरान पढ़ने वाले को कोई अहमियत ही नहीं, इज्जत ही नहीं, कोई वेकार ही नहीं उसका। उसके अलावा सबसे रखीस तरीन कमतर दर्जा हमारे यहाँ किसको है? तुम मोमिन साहब है ना, कि कोई बोले या ना बोले है। मुसलमान खुद अपने दीन को हकीर समझ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं? वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। मोमिन ऐसे नहीं होते, वो
سب سے پہلے توحید کا علم سیکھتے ہیں، اللہ کے بارے میں سیکھتے ہو، اتنے آگے چلے گا، اتنا ہو زیادہ اللہ رب العالمین کی محبت میں آگے چلے گا۔ شدید ترین محبت کس کی ہوتی ہے ان کے دل میں؟ اور وہ بھی کیوں؟ وجہ ہے اس کی، سبب وجہ ہے، کیوں؟ سب سے بڑا کون؟ کتنا بڑا؟ کتنا بڑا؟ ہمارے نونہال، ہمارے معصوم، ان کو آپ نے سکھایا ہوگا کتنا بڑا اللہ؟ زمین و آسمان کو مٹھی میں لے لے گا، مٹھی میں۔ پہلے بتائیے زمین کتنی ہے؟ اس سے بڑی کتنے درجے کا کیا ہے؟ جوپیٹر۔ اس سے بڑے بڑے ستارے ہیں جو ہمارے سورج سے لاکھ درجے بڑے ہیں۔ اس کے بعد گلیکسیز ہے، اس کے بعد کلسٹر ہے، اس کے بعد سپر کلسٹر ہے، پھر آسمان، 7 آسمان، یہ سب ایسے اللہ نے مٹھی میں، جیسے مختلف آپ نے ڈالے 5-10 آپ نے کنکرے ایسے دی نا ہاتھ میں، ایسے اللہ رب العالمین پورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، یہ زمین اللہ کی قیامت کی مٹھی میں ہوگی قیامت۔ انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ کہاں ہے زمین کے؟ جس کی مٹھی اتنی بڑی، بتاؤ کتنا بڑا ہو۔ کوئی تو بڑا ہوتا ہے لیکن کم عقل ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں دیکھیں کوئی بڑا لیکن عقل سے اللہ نے اس کو رکھا ہوتا ہے۔ کہیں ہمارے ذہن میں ایسا تصور کہ اللہ لمبا موٹا ہے، اتنا نعوذ باللہ من ذالک، اور طاقت اس کے پاس، طاقت معلوم کتنی اللہ کی طاقت؟ کوئی بتا سکتا ہے مجھے اللہ کی طاقت کتنی؟ تھوڑا سا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ کن فیکون، کسی چیز کو اللہ وجود میں لانا چاہے، بڑی سی بڑی چیز، سخت مشکل سے مشکل ترین، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ توحید کے نکات ہیں، انہیں آپ سینے میں بٹھا دینا میرے۔ اللہ فرماتے ہیں ہو جا، وہ ہو جا۔ اور یہ بھی یاد رکھے گا، جیسے ہمارے لیے سب سے آسان کیا؟ رومال ہم میں سے آدمی بنا لے، آس پاس کیا کرنی؟ سلائی کرنی، ٹیپ دیں۔ اور مشکل ترین کیا ہمارے لیے؟ کمپیوٹر بنا۔ ہم ہر کوئی مت بنا ہے، یا کمپیوٹر کو الگ کرنے کے بعد ہر کوئی جوڑ سکتا ہے؟ نہیں، یہ مشکل ہے۔ اللہ کے لیے ایسا نہیں، اللہ کے لیے ہر کام برابر۔ ایک ہے نا ہمارے لیے کوئی کام مشکل، کوئی کام، یہ نقطے کی بات، توحید کی بات ہے، یہ ہمارے نونہالوں کو معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ کے لیے ہر کام برابر، انسان بنانا، چوٹی بنانا، زمین و آسمان سب برابر، معلوم؟ یہ معلوم؟ اتنا اللہ تعالیٰ طاقتور بھی، بڑا بھی۔ اس کے بعد اور کیا ہے؟ اب خوبصورتی ہے کیا؟ ہم دیکھ رہے دنیا کے اندر جن کو پوجا جا رہا ہے، اتنے بدصورت ہے، خدایا اگر وہاں سے میں گزر جاؤں رات بھر میں کیا مجھے نیند نہ آئے۔ ہے کیا؟ کوئی سورج کو پوجتا ہے، سورج کے قریب چلے جاؤ جہنم میں جلو گے، جہنم سے بھی خطرناک شکل میں تم کو جلائے گا۔ ایسے معبود ہیں، معلوم کتنا اللہ خوبصورت۔ پڑھتے بھی ہیں تو ظاہر سی بات ہے دین کو تو حقیقت سمجھیں گے۔ اللہ کے دین کے لیے ہم کیا مر مٹیں گے، اس کے لیے کیا ہم جانے دیں گے، اس کے لیے کیا ہم مال نکالیں گے، اس کے لیے کیا ہم قربانیاں دیں گے، جب معلوم ہی نہیں اللہ ہمارے بچوں کو بتائے۔ مسلم شریف کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل اہل الجنت الجنہ، صہیب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب اہل جنت جنت کے اندر داخل ہو جائیں، اللہ رب العالمین فرمائیں گے یقول اللہ تعالی هل تريدون شيئا ازيدكم، اہل جنت کہاں رہنے والے؟ نیل کے ان پہاڑوں میں رہنے والے، پوگل کے پہاڑوں میں رہنے والے، بڑی محنت جفا کشی کے بعد جنت دیکھی ہوگی ہے، شراب کا سمندر ہے، دیو کتنا پی رہے ہو، یہ دنیا کا شراب نہیں ہوگا وہاں، وہ بہترین دنیا جنت کی نعمتوں کے صرف دنیا کے اندر نام ہے، نہ سائز ہے، نہ کلر ہے، نہ وہ ٹیسٹ ہے دنیا کے دیکھیں گے وہاں۔ اور دنیا کی چیز جنت کے اندر اتار بھی دی جائے نا دنیا کے اندر، اس کا ذائقہ بدل جائے گا، یاد رکھیے اس کا ذائقہ حضرت کو جنت دنیا کے اندر کیسا ہو گیا؟ شہد پر سمندر دیکھا وہ بالکل گم ہو چکا ہوگا، دیکھی حورے، شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا
नबी सब ने हमें इस जरिए उभारा। पूरे है एक की तरफ नजर आ रहा, दूसरी की तरफ नजर नहीं पड़ रही, बस देखता ही जा रहा है, दूसरी मेरी तरफ ही रहे। और एक नहीं कितनी, जन्नत का मकान अलग, उसके अलावा क्या है, एक टेंट। ईमान नबी सब ने ऐसा होगा, एक कोने में हूर को बिठाएगा, दूसरे कोने की हूर वहां तक देख नहीं पाए, हालांकि वो हूर उनकी चमक सूरज से भी ज्यादा होगी। ठीक वहां ऐसे ये दुनियावी शक्लें भी नहीं होंगी, ये मिट जाएंगी सारी। वहां जन्नती हर कोई खुद कितना होगा फिर 60 बालिश। आदम अलैहिस्सलाम का बालिश ले तो बताइए कितना होगा। हमारा बालिश तो नहीं है मुराद। नबी सब ने फरमाया आदम अलैहिस्सलाम कितने करते थे, 60 बालिश। जब जन्नत में दाखिल होंगे अहले जन्नत तो कितना होगा, आदम की शक्ल के। और अगर 60 बालिश कितना है, 2 फुट है, 120 फीट। सिर्फ लंबे नहीं होंगे, उसी हिसाब से मोटा हो, उसी हिसाब से खूबसूरती ताकतवर, कभी थकावट नहीं। जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे, नबी सब ने फरमाया, अल्लाह फरमाया किसी और चीज की जरूरत, हल तुरीदून शैअन अज़ीदकुम, वो कहेंगे कुछ नहीं है, देखा ही नहीं होगा कुछ, तो कहा क्या, बिल्कुल गुम हो चुके होंगे, मस्त हो चुके होंगे। क्या कहेंगे, जवाब भी देंगे, कहेंगे अलम तुबय्यिद वजूहना, हे अल्लाह दुनिया के अंदर हमें क्या था, किल छाया पड़ी हुई थी, काले दाग हो चुके थे मेहनत करके, दाढ़ियां सफेद हो चुकी थी, दांत निकल चुके थे, चमड़ी काली पड़ चुकी थी, बाल निकल चुके थे। आपने जन्नत के अंदर इतना खुशखरम बना दिया, इतना आज हमारे चेहरे चमक रहे। कैसे चमक रहे होंगे, हदीस मालूम है ना, कैसे चमक रहे होंगे, 14 रात के चमक रहे होंगे। और क्या कहेंगे, अलम तुदखिलनल जन्नह, अल्लाह जन्नत के अंदर क्या आपने दाखिल नहीं किया, इतनी बड़ी ऐसी जन्नत है, जहां तक नजर दौड़ा अपना एरिया, वहां इतनी मेहनत करने के बाद सिटी में कितना कुछ मरले जमीन लेते थे, वो भी वहां पर आसपास हमसाया तंग करता, की तरफ खिड़की नहीं करना, हमसाया खराब होता था। ये इतनी बड़ी जन्नत हाजिर है, आप किस चीज की जरूरत, क्या जहन्नम से आपने हमको नजात दी, आप किस चीज की जरूरत। अल्लाह फरमाए क्या देखा अभी आप लोगों ने, अभी क्या देखा आप लोगों ने, काला फयक्शिफुल हिजाब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन पर्दा कश्फ कर लेंगे, जो मखलूक और अल्लाह के दरमियान होगा। फिर हदीस की तशरीह, हदीस उस दो वो क्या मंजर होगा, वो क्या मंजर होगा, इसके अल्फाज आगे वाले और भी ज्यादा इसका मफहूम तश्ते अज़वाम होता है सहीहुल जामिया की हदीस। फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यतजल्ला लना रब्बुना यौमल क़ियामत दाहिका, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, ज़ह कहते हैं, हंसना है तो मुस्कुराना होता है, मतलब आवाज नहीं है, मुंह खुला हुआ, लेकिन ये है तबस्सुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाहिकन, अल्लाह हंसते हुए क्या होगा, तजल्ली फरमाएगा। काला फयक्शिफुल हिजाब, अल्लाह रब्बुल आलमीन हिजाब हटा लेगा। लेकिन आपको मालूम फिर क्या मतलब होगा, जन्नत की वह रौनक खूबसूरती क्या पड़ जाएगी, फीकी। जैसे आप दिन को दिखाए सूरज के सामने आप टार्च लगाए, कुछ दिखेगी उसकी लाइट, ये तो दिखती है उस पर, बल्बों की जरूरत पड़ती है, कुछ भी फीकी। ऐसे ही फरमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जन्नत की वो पूरे पूरे वो नियमतें सब भूल जाएंगे, बस ऐसे हर कोई देख रहा है। एक तीसरी हदीस के अंदर, बुखारी के अंदर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मरतबा बद्र का चांद था, फुल मून जिसको कहते हैं, 3 दिन हफ्ते में जो महीने में होते हैं। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, साहबे ने फरमाया देख रहे हो इनको, फरमाया हाँ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम देख रहे हैं। क्या कोई भीड़ की जरूरत है, या पूरी जमीन वाले एक जगह जमा हो, अपनी अपनी जगह से इसको देख पाए। फरमाया ऐसे ही सतरौन रब्बकुम कमा तरौना हादा ला तुदाहून फी रुयती, ऐसे ही तुम कयामत के दिन अपने रब को देखो, दुनियावी आंखों से नहीं, उस वक्त आंखें भी अलग होंगी, अपने अल्लाह को तुम देखोगे, ला तुदाहून फी रुयती, इसमें कोई भीड़ नहीं होगी, कोई और कुछ और अहादीस मुस्नद भी आला के अंदर आपको मालूम है, जन्नत के अंदर जब अल्लाह को देखने के बाद क्या होगा, अल्लाह को देखने के बाद मुस्लिम की इस हदीस के अल्फाज नबी सुनने पर, फमा उतू शैन अहब्बु इलैहिम मिनन नज़र इला रब्बिहिम अज़्ज़ा वजल, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ
देखने से बढ़कर मोमिनों की नजर में कोई जन्नत की चीज महबूब तरीन, सबसे बड़ा खुश नसीब उस वक्त क्या होगा? वो होगा जिसको ज्यादा अल्लाह का दीदार, अल्लाह के अंबिया को दिन में 2 मरतबा, किसी को महीने में, जैसे अल्लाह की मोहब्बत दुनिया के अंदर थी नहीं कभी अल्लाह के लिए मोहब्बत। आज हमारी मोहब्बत कितनी कमजोर है अल्लाह के साथ। औलाद के लिए हम अल्लाह को भूल जाते हैं, बीवी के लिए अल्लाह को भूल जाते हैं, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए हम दीन का काम छोड़ दे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाते हैं, छुरी चलाते हैं और दीनी तालीम इसलिए हासिल नहीं करते मुझे मुल्ला नाम पड़ेगा। मुझे क्या पढ़ना चाहिए? मुझे वो नाम चाहिए जिससे जो हर कोई मुझे कहे अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं कुरान करीम के दो, मा क़दरुल्लाह हक़ क़दरिही। काश 3 मरतबा अल्लाह ने इस आयत को कुरान करीम के अंदर शुरू के अल्फाज जब सूरह अनआम के अंदर, सूरह हज के अंदर, सूरह ज़ुमर के अंदर 3 मरतबा अल्लाह फरमाते वमा क़दरुल्लाह हक़ क़दरिही। अफसोस दुनिया वालों ने मेरी कदर ही नहीं की। वमा क़दरुल्लाह हक़ क़दरिही, लोगों ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की कदर ही नहीं जानी। वमा क़दरुल्लाह हक़ क़दरिही वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु, ये क्या जाने अल्लाह क्या है। अल्लाह इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जमीन, वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु वस समावातु मत्विय्यतुन बियमीनिही, जमीन और आसमान सब लपेटे होंगे अल्लाह के हाथ। इतना अल्लाह है। उस अल्लाह के लिए हमने क्या करना है? अपनी जिंदगी के चंद अयाम निकालने। आप अंदाजा लगे 60 साल उम्र गुजार कर यहाँ से जाए कोई कब्र में, तो उसको 3 सवाल पूछे जाए, उसको जन्नत का रास्ता मालूम न हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म दीन से क्या होता है? जन्नत की राह आसान, सहलल्लाहु लहु तरीक़। कैसे? जब अल्लाह के बारे में आपने पढ़ा भी, अब अल्लाह की मोहब्बत आएगी ना, अब करेगा इंसान, हुई ना जन्नत की राह आसान। नबी सल्लल्लाहु के बारे में पढ़ा और पढ़ोगे और सुनोगे और ज्यादा दिल करेगा और दुरूद पढ़ेंगे और इताअत करेंगे और सुन्नतें बढ़ाएंगे, तो हुई ना जन्नत आसान। अगर इल्म से दूर रहे, इल्म दीन से, जन्नत मुश्किल है ना, मजाक भी उड़ाएगा इंसान, हकीर भी समझेगा, मजाक भी उड़ाएगा। इल्म दीन से 60 साल गुजार कर यहां से जाए, उसको 3 सवाल पूछे। कितने हमारे मुसलमान भाई है आजकल जिनको आप कहेंगे अल्लाह के चंद नाम जरा बताइए, वो कहते खुदा है, और खुदा अल्लाह का नाम है, कुछ और नाम कहते हैं, बल्कि बहुत सारे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बताओ, पैगंबर है ना, पैगंबर ऐसे है, नबी ऐसे नबी ऐसे नबी, ये भी है ऐसे। कलमे का पहला जुज बताओ, दूसरा जुज बताओ, नहीं पता नहीं। 60 साल मैंने तुझे बंदे दी, मैदान महशर में 1000 साल का वो दिन होगा, 50,000 साल का दिन, ठीक 50,000 अफन, हाँ 50,000 साल का दिन होगा। उसमें कौन लाश तक ठहरेगा, कौन बीच तक ठहरेगा, क्या वहां कुछ खाना होगा, वहां कौन भूख से निढाल होगा, वो कौन से अमाल, उसके बारे में कभी सुनते कभी पढ़ते। जन्नत तो मुश्किल होगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अगर हम जिंदगी के अंदर कुछ न कुर्बानी दे, कुछ अयाम न निकाले इस इल्म दीन के लिए, अल्लाह के लिए कुछ माल न निकाले, कुछ अपने अयाम सरफ न करे, आपको मालूम फिर भी वो मेहनत करनी है, फिर भी वो परेशानी उठानी। अगर अल्लाह के दीन के लिए कोई परेशानी नहीं उठाएगा, पैन नहीं लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया मामलात में उसको फंसा देगा। ठीक, अल्लाह के दीन के लिए कोई परेशानी उठाएगा, तक वो दो करेगा, मेहनत करेगा, उसमें क्या है? अजर है, पहला अजर है, उसके अलावा अल्लाह की रजामंदी है, और आगे आने वाली जो असल जिंदगी है, इटर्नल लाइफ, हमेशा 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 हमेशा, कभी मौत नहीं। ये तो आरज़ी है दुनिया की, वो कहा है जन्नत में। अगर उठाई परेशान, अगर नहीं उठाई वही परेशानी अल्लाह डालेगा दुनियावी मामला में। हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर नहीं किसी ने अल्लाह के, जिसका मतमाई नजर अल्लाह का दीन व आखिरत को हो, दुनिया हो,
اللہ رب العالمین فرق علیہ شملہ، اس کو دنیا معاملات میں بکھیر طرح طرح پیشاب الجھنوں میں پھنسا دیتا ہے. اور یہ کیا ہے پریشانی پھر بھی اس کو لینی. اس میں کیا ہے ذلت ہے. سب سے پہلے کیا ہے ذلت ہے. اس کے بعد کیا ہے اللہ کا غضب ہے. اس کے بعد ہے جہنم کی آگ. ہم اللہ کے دین کے لیے محنت نہ کریں گے کون کرے گی اتنی محنت؟ وہی محنت اس سے ڈبل ٹرپل زیادہ کہیں اور کہاں ٹرپل محنت کہاں کرنی پڑے گی؟ دنیاوی بارے میں کسی معاملے میں اللہ پھنسا دے گا وہاں کرنی پڑے گی. اس سے زیادہ اگر ہم دین کے لیے وقت نکالیں گے، دین کو سیکھنے کے لیے پھیلانے کے لیے اگر ہم وقت نکالیں گے، اللہ رب العالمین ہمارے معاملات آسان. اور اللہ رب العالمین کی تب ہی جا کے مومن جب اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہوگی. اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ اب یہ ہے تھوڑا سا چند دن پلس شروع. اللہ کی محبت آئے گی اللہ کو قرآن پڑھنے سے. اللہ کے بارے میں کثرت سے پڑھنا ہے، اللہ کے ناموں کی تشریح پڑھنی ہے. علماء اہل سنت والجماعت نے جو ان کی تشریح کی ہے اس کے مطابق اللہ رب العالمین کا عقیدہ اپنا سیٹ کرنا ہے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا ہے. کبھی اس کے لیے تخلیہ بھی لینا ہے، غور و فکر بھی کرنا ہے. اللہ کی محبت بڑھے گی، اللہ رب العالمین کی محبت بڑھے گی تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی ہر منزل آسان ہوگی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص عطا فرما. آج آپ جانتے ہیں آج کل سب سے زیادہ ہمارے اعمال کے اندر ہماری عبادات میں جو چیز کی کمی ہے وہ ہے اخلاص کی کمی. کوئی کبھی اخلاص پر بول رہا ہوتا ہے لیکن مقصد کیا لوگ کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر کیا فرمایا الشرک اخفی من دبیب النمل فی لیلۃ سوداء علی صفرۃ السوداء. اسے کچھ علماء نے اس پر کلام ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمہ اللہ نے اسے حسن کا درجہ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی اس سے بھی زیادہ باریک ہے شرک. اور اس کی مثال کیا ہے؟ ہم شرک پر بولے، ہم اخلاص پر بولے لیکن اس میں بھی نیت کیا ہے؟ لوگ بولے اس دور میں مخلص ہے تو یہی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص سے جو اللہ کی اتنی بڑی ذات ہے ہمیں ہر عمل کس کے لیے کرنا چاہیے؟ اسی اللہ رب العالمین کی ذات سے. تبھی جا کے انشاءاللہ الرحمن نتیجہ خیز انشاءاللہ الرحمن دنیا کے اندر اصلاح ہوگی، معاشروں کی بھی اصلاح ہوگی. ہر کام اللہ رب العالمین کے لیے کرنا چاہیے. اور اخلاص اللہ کو اتنا پیارا اخلاص میں پیور تھے 100% کن. ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کیا کہا اس کے بعد جو بھی نبی لاؤں گا انی جاعلک للناس اماما، جو بھی نبی لاؤں گا تیری ذریعے سے. اس کے بعد سینکڑوں نبی آئے وہ سب ابراہیم کی اولاد سے. اخلاص سے اللہ کو اتنی محبت ہے. اور جس چیز میں شرک آ گیا اللہ رب العالمین وہ سارا کا سارا پھر چھوڑ دے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمارے دلوں میں اپنی محبت عطا فرما، ہمارے دلوں کے اندر اپنا خوف پیدا فرما، اپنے کلام کی محبت عطا فرما. اے اللہ قرآن کی سربلندی کا اے اللہ رب العالمین وہ وعدہ ہمیں دکھا. اے اللہ ہمیں اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رب العالمین ہماری بستیوں کے اندر ہمیں اپنے گھروں میں اپنی ذات پر قرآن نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما. اور ہمارے دلوں کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت کا جذبہ پیدا فرما. اور اس کے علاوہ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں ہمارے استاد محترم بڑی شفقت سے جنہوں نے ہمیں پڑھایا بہت ہم نے ان سے سیکھا ہے. اخلاص سے ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ ہم سب دعا کریں. ان کی اہلیہ عرصے دراز سے بیمار تھی. اے اللہ وہ بھی ان کے لیے آزمائش تھے ہمارے استاد محترم کے لیے، اس میں انہیں اجر عطا فرما. بہت پیسہ خرچ کیا، کافی تکلیف دی گئی ہمارے ہم جانتے ہیں. اور آج صبح خبر یہ ہم نے پڑھی کیوں اس دنیا سے رحلت فرما گئی. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرما اور مرحومہ کو جنت کے اندر جنت الفردوس عطا فرما جو جنت کی سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے، اور ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں کہنے سننے زیادہ ہم توفیق عطا فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک
काफ़ी हो चुका है। कभी कभार हमें ऐसा महसूस होता है कि जब हम समझते हैं, मतलब मेरे जैसे गलत, कि अगर सामने वाला कोई बोर हो रहा है तो हम इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इतना जोर लगाते हैं कि रगे फटने का भी इम्कान हो जाता है। लेकिन मैं इस बात से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था कि आप सब के सब बहुत दिलचस्पी के साथ सुन रहे थे, खुआ छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, ज़ईफ़ुल उम्र हो, सब के सब इंटरेस्ट। और उस्ताद मोहतरम ने शायद कोई बात जोर से कही नहीं, बड़े आसानी से, बड़े मतलब धीमे आवाज़ में कह रहे थे। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको इन सलाहियतों से नवाजा है। रब्बुल आलमीन इनमें और ज़्यादा जो है बरकत अता फरमाए, ज़्यादती अता फरमाए। यही वो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, जो उस्ताद हैं, जो खड़ी के अंदर हमारा इदारा है हिफ्ज़ के लिए, जहाँ पे हर सरमाही कोर्स 2 महीने का कोर्स होता है हर उस तालिब इल्म के लिए जो के अंदर 6 साल 10 साल नहीं लगा सकते। तो कुरान सीखने के लिए अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं असातिज़ा के पास जाए तो हर साल एक कोर्स होता है। और हम ऐलान भी करते हैं, तब शायद पहले भी कुछ तलबा यहाँ से गए हुए हैं, खुसूसन गली से 2-4 तलबा गए थे। तो विंटर कोर्स एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स होता है कि वहाँ पे 2 महीने के अंदर आप अपने कुरान को दुरुस्त कर सकते हैं तजवीद के साथ, और बहुत ही अच्छी आवाज़ में अच्छी तरह से कुरान समझ सकते हैं। और इसके अलावा हमारे तहसील रामसुल्तान तबलीग, अब हमारे यही उस्ताद मोहतरम हैं, तबलीग तहसील के अंदर जिस तरह से भी होगी वो इन्हीं के जिम्मेदारी में। और ये पहली कोशिश थी कि अपने हल्के के अंदर हमने इन्हें मदऊ किया। इंशाअल्लाह मुझे आप लोगों की दिलचस्पी जिस तरह से दिख रही है और ये ताउन जिस तरह से आप हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये बहुत बड़ा ताउन है। इसके साथ मुझे लग रहा है कि इंशाअल्लाह रमज़ान के बाद हर माह एक प्रोग्राम हम यहाँ पे मुनक़िद करेंगे। आज अगर तादाद कम है, इससे भी ज़्यादा बढ़ेगी इंशाअल्लाह। बहरहाल बिना किसी वक्त के मैं सबसे पहले बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ आप सब का भी कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, अपना कीमती वक्त सर्व किया, अल्लाह के लिए सर्व किया। हम तो इसका बदला नहीं दे सकते, बस अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह अपने हाथ से आपको इसका नेमत बदला अता फरमाए, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। और खुसूसन मैं बहुत ही ज़्यादा मशकूर ममनून हूँ अपने असातिज़ा का, उस्ताद मोहतरम अमानुल्लाह सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह और उस्ताद असातिज़ा शौकत अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह का, कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की। अभी पैदल आए वहाँ नींद से, जब एमरजेंसी ऐसी हुई तो इनको पैदल आना पड़ा, और 5:30 बजे के बाद मैं एयरपोर्ट में पहुँच चुका था। उसके बाद इन्होंने सफ़र बांधा और फिर भी वक्त पर यहाँ पर पहुँच गया। अल्लाह की मदद से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आसानियाँ फरमाई। रब्बुल आलमीन से ही मांगते हैं कि अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिना किसी वक्त के हम यहीं पर अपनी जो इस प्रोग्राम को इख्तिताम करते हैं। मैं दावत देना चाहूँगा अपने ही एक तालिब इल्म को, मोहतरम सदीक अहमद, शायद यहाँ पे मौजूद हूँ, अगर मौजूद नहीं है कोई और जी यहाँ पे मौजूद है, वो आज़ान कहेंगे और उसके साथ ही हम नमाज़ अदा करेंगे। और इमामत का फरीज़ा हाफिज़ ज़रदुल शेख हाफिज़ शौकत अहमद सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह जो अंजाम देंगे। अल्लाहु अकबर अल्लाह